Hello everyone, ma'am, SST of class 8. So students, in the previous part we have already discussed about the position of the president in relation to the prime minister. President की क्या position होती है in relation to the prime minister? We have already discussed in our previous part. Uh, let's revise it. But in the previous part, we have discussed president has the supreme power, but it will not require to act without the advice of the prime minister. President एक supreme power होती है, but it will not require an act without the advice of the prime minister. So here the prime minister role is very important as compared to the president. So both are important, but prime minister थोड़ा executive में ज़्यादा हो जाता है as compared to president. So these all things we have already discussed in our previous part. Come to the next one. Position of the prime minister. What is the position of the prime minister? So do you first of all, before discussing this topic, I just want to know who is the prime minister of India. बता सकते हैं? Yes, you are right. Mr. Narendra Damodar Das Modi is the prime minister of India. So what is the position? Let's know about it. Prime Minister occupy a unique position in the Council Minister. If is he who choose other minister. Prime Minister एक unique position है जो है कि acquire करता है in Council of Minister and Prime Minister ही जो होता है जो other minister को choose करता है. Prime Minister will choose the other minister. तो ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर्स की पावर होती है और व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच, तो द मिनिस्टर हैज टू गिव वे टू द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही करना होगा, बट दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो मिनिस्टर जो है कि रास्ता दिखाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं. तो these are the positions. The prime minister may ask any minister for the resign of his post. प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर से रिजाइन देने के लिए बोल सकता है. If he does not do so, then the president may remove him from the council of minister. अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट कर सकता है. द प्राइम मिनिस्टर इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया. द फर्स्ट सिटीजन इज योर प्राइम मिनिस्टर एंड द सेकंड सिटीजन इज योर प्राइम मिनिस्टर. So note down this is very important. So the prime minister presides over meetings of all the council of ministers. जितने भी council of ministers होते हैं, they are work under the prime minister. prime minister के अंदर work करते हैं and prime minister के पास ये power है कि वो council of ministers को resign दिलवा सकता है अगर वो चाहते हैं, as well as appoint कर सकता है. So these are the positions of the प्राइम मिनिस्टर. ये सारी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस होती हैं, पावर्स होती हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन कौन से प्रेसिडेंट बने, कौन कौन लोग थे? तो लेट्स नो अबाउट इट. राजेंद्र प्रसाद between 1950 to 1962 he was the first president of India. राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के. आप सबको पता होगा. तो कितने वर्ष के लिए थे? 1950 to 1962. The second president is Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. 1962 to 67 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan बने थे. Then after Zakir Hussain, VV Giri, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, जाली सिंह, जितने भी थे they all the president of the India. तो लास्ट कौन है? रामनाथ कोविंद, जो भी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है. इसके पहले कौन था? प्रणब मुखर्जी थे. 2012 to 17 तक वो रहे. देन उसके पहले प्रतिभा पाटिल. एक बात बच्चों ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट वुमेन व्हिच इज कम अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पहली महिला थी जो कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KN नारायण, शंकर दयाल शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने.
तो प्रतिभा पाटिल जी का याद रखिएगा कि ये पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। इसके पहले आप देखोगे सभी मेल्स थे, सिर्फ फीमेल्स में प्रतिभा पाटिल ही नहीं है। हु इज द फर्स्ट मिनिस्टर? राजेंद्र प्रसाद। और रामनाथ कोविंद इज करेंटली जो भी हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। एक बात और बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो रामनाथ कोविंद है वो 14th प्रेसिडेंट है। आप देखोगे फर्स्ट आपके कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और 14th कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, क्या क्या चीजें हुई, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। तो बिफोर स्टार्ट मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। बच्चों जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जो है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी आती है एज अ गवर्नमेंट बनके, तो वो अपने मिनिस्टर को चूज करती है, देन सिलेक्शन होता है। अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो कोलिशंस करते हैं। कोलिशंस मीन्स दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है कि मिल के सरकार बनाती हैं, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो इन दिस वे गवर्नमेंट का जो है कि फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको बारे में जानते हैं। तो वन बाय वन प्रोसीजर हम करते हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड विच इन शोइंग मेनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत सारे पार्लियामेंट के जो है कि मेंबर्स होते हैं विच इज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी से क्या होते हैं? मैच होते हैं। तो पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, लिस्ट प्रिपेयर होती है जिसमें जो है कि सारे मेंबर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड द पार्टी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, वो कौन सी होती है? वो आपकी मेजोरिटी पार्टी होती है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और वो इलेक्शन बाद जीत जाती है, मेजोरिटी पार्टी बनती है एंड दे फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो इट शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 मेंबर्स है तो एटलीस्ट 250 जो है कि एक पर्टिकुलर पार्टी से होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन अपॉइंट करता है? It is appointed as the prime minister by the president. ध्यान रखिएगा जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, इट इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो अपॉइंट होता है और कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल है अगर हम, तो बीजेपी पार्टी, उनके लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी हैं, तो मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर और हु विल अपॉइंट? बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इन दिस वे दिस गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म। इस वे में गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इन केस अ सिंगल पार्टी फेल टू गेट द मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं कर पाती है तो द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज। अदर पार्टीज के सपोर्ट से जो है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू, कोलिशन गवर्नमेंट में तो जो मेजोरिटी नहीं पा पाती है, 50% सीट नहीं कवर कर पाती है, तो दो पार्टीज मिल के सरकार बनाती है जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो अब हमने आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। So the party or the group of parties is in coalition and select it as a leader. दोनों पार्टी मिलकर अपना लीडर जो है कि सेलेक्ट करती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट होता है। तो and then the prime minister prepare a list, किस टाइप की लिस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर। मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई है, तो पीएम ही लिस्ट बनाता है उसे अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन से मिनिस्टर चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी टेक डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर इस चीज के बारे में डिसीजन लेगा। The cabinet minister are given different department। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है। either in the department like finance, defense, foreign affairs, child development, human resource development, women and child development। तो इस तरह के जो है कि कई सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, रेल, ट्रांसपोर्ट,
कोल पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, जो है कि कई सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है कि रेल मिनिस्टर कौन है, और आपके जो है कि पीयूष गोयल जी हैं। होम मिनिस्टर कौन है, तो आपके जो है कि अमित शाह हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों, राजनाथ सिंह हैं। तो इस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जो है कि डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, और वो उस काम को देखते हैं कि इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या चीज अच्छी कर सकते हैं जिससे डेवलपमेंट हो इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इस टाइप के जो है कि MHRD, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो है कि कौन है मिनिस्टर, बता सकता है कोई? प्रकाश जावड़ेकर, सॉरी प्रकाश जावड़ेकर जो नहीं है, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है कि निराला करके कोई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअल में। तो इस टाइप के डिफरेंट कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ताकि जो है कि हर पर्टिकुलर फील्ड में जो है कि जो मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो अच्छे से काम कर सके। तो सच गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो कोalition गवर्नमेंट में बनाते हैं, अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो अपनी खुद की सरकार बनाते हैं। जैसे बीजेपी को आप देख सकते हैं, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्या है, उन्हें दोनों साल मेजोरिटी मिली। 2014 में इलेक्शन हुआ तो भी उन्हें मेजोरिटी मिली, 2019 में इलेक्शन हुआ तो भी उन्हें मेजोरिटी मिली। तो वो अपनी सरकार बनाए, अपनी पार्टी की सरकार बनाए, किसी के साथ कोलिशन नहीं किए, बिकॉज दे टेक द सीट्स मोर देन 50%, दे ऑक्यूपाइड द सीट्स मोर देन 50%। उन्हें 50% से अधिक जो है कि सीटें मिल गई थी, इसीलिए उन्हें किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोलिशन करते, बहुत सारी जगह कोलिशन होते रहते हैं। तो दीज आर इन दिस वे द गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो जगह जगह जो है कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस मिनिस्टर को दिया जाता है वो उसमें फर्दर काम करती है, फर्दर डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। तो दिस ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Let's summarize it what we have discussed. प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, बिकॉज इट्स अ लेंदी टॉपिक, आपको अच्छे से जो है कि डिटेल में समझाना होगा। तो let's summarize it what we have discussed, students. We have discussed about the position of president in relation to the prime minister. क्या पोजीशंस होती है प्राइम मिनिस्टर की, क्या पोजीशंस होती है, और किस तरह प्राइम मिनिस्टर जो है कि क्या पावर्स होते हैं, किस वे में काम करते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। प्रेसिडेंट के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से, हमारा देश आजाद होने के बाद कौन से प्रेसिडेंट्स बने, और अब तक कौन कौन से कितने कितने लोग प्रेसिडेंट बन गए थे, ये सारी चीजें हम लोग ने जानी। देन आफ्टर हमने जाना हाउ गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, किस वे में काम करती है, लिस्ट क्या क्या प्रोसीजर होता है, वी हैव टू डिस्कस ईच प्रोसीजर। हमने हर प्रोसीजर को जाना, किस वे में करती है, अगर मेजोरिटी मिलती है तो कैसे करती है, नहीं मिलती है तो कोलिशन की गवर्नमेंट बनाती है, किस किस को कैबिनेट मिनिस्ट्री में रखा जाता है, तो पीएम डिसाइड करेंगे, उन्हें मिनिस्टर्स को रखा जाता है, वो अपॉइंट होते हैं एज अ मिनिस्टर, और उन्हें एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, वो डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिए जाते हैं। ये सारे मिनिस्टर्स जो है कि उन डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं फॉर फर्दर ग्रोथ। सो दिस ऑल द इन दिस वे द गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म, इस तरह गवर्नमेंट जो है हमारी फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे, टुडेज टॉपिक। तो thank you very much, see you in the next class, bye bye, take care।